بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتوانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی اس طرح کی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پیش خدمت ہے میرے پیارے دوستوں، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ نیک اور رحم دل تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام دلاور خان، دوسرے کا نام امیر خان اور تیسرے چھوٹے کا نام شیر خان تھا۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں مغرور اور عیش پرست تھے۔ انہیں اپنے شہزادے ہونے پر بہت مغرور تھا، لیکن شیر خان شیر کی طرح دلیر اور نیک دل تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود بالکل بھی غرور نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے بادشاہ اور رعایا سبھی اس کو بہت چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں بڑے شہزادے اس سے حسد کرنے لگے اور شیر خان کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، تینوں شہزادے بڑے ہوتے رہے۔ بادشاہ سلامت نے ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا۔ ہر ایک علم اور فن کے لیے بڑے اچھے اور ماہر استاد مقرر کیے۔ وہ تینوں شاہی طریقوں پر تربیت حاصل کرتے رہے۔ اچانک بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے۔ شاہی طبیب اور حکیم دل و جان سے ان کے علاج میں لگے رہے، مگر سب کچھ بے سود۔ بادشاہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی حکیم بلائے گئے، مگر ان سے بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد ایک شاہی حکیم دربار میں آئے جو نہایت بزرگ تھے۔ ان کے سر اور داڑھی کے ساتھ ساتھ ہی پلکوں اور بھوؤں کے بال بھی پکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو دیکھنے کی اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی۔ بادشاہ کی نبض دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر غور کیا اور پھر بولے، بادشاہ سلامت کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو دوا مناسب ہو سکتی ہے اس میں آکاش پھول کی جڑی بوٹی کا استعمال لازمی ہے۔ اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ شہزادے نے معلوم کیا، آکاش کا پھول آخر ملے گا کہاں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، سندر بن میں سنہری چشمے کے کنارے پر جو گھاس ہے وہی آکاش کے پھول ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی اگر مل جائے تو بادشاہ سلامت بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تینوں شہزادے نے ایک ساتھ کہا، یہ گھاس ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ اس کے اس ارادے سے حکیم صاحب بہت خوش ہوئے، مگر انہوں نے بادشاہ سے کہا، وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہاں بہت خطرہ ہے، بڑے بڑے خونخوار درندے اور خوفناک جانوروں کے ساتھ وہاں کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو وہاں جانے والوں کو زندہ واپس نہیں آنے دیتی۔ حکیم صاحب کی اس بات سے شہزادے کو تھوڑا ڈر تو محسوس ہوا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شیر خان پہلے ہی تیار ہو گیا۔ اس کے دونوں بھائی بھی جو ہر وقت اس سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، بھلا اس وقت کیوں کر پیچھے رہ سکتے تھے؟ لہٰذا انہوں نے بھی وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آکاش کے پھول لا کر بادشاہ اور درباریوں کی نظر میں عزت کی نظر سے دیکھے جائیں اور شیر خان کو بھی نیچا دکھا سکے۔ تینوں شہزادے بادشاہ سے اجازت لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں آگے نکل گئے اور شیر خان ان سے پیچھے رہ گیا۔ شام ہوتے ہوتے شیر خان اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ شہزادے کو بھوک لگی تھی۔ اس نے سوچا اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا جائے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے کو ایک پیڑ سے باندھ کر پہلے اس کے کھانے دانے کا انتظام کیا اور پھر ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگا۔ نزدیک ہی پانی کا اسے چشمہ نظر آیا۔ شام کے وقت شفاف پانی بہت ہی خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس نے کنارے پر بیٹھ کر پہلے تو منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہیں صاف سی جگہ پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں بہت ہی کمزور سی اور لرزتی آواز سنائی پڑی، بیٹا مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ شہزادے نے دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور سی عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی کھانے کی طرف لالچی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادہ اس بیابان جنگل میں بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، مگر جلد ہی اس کے نیک دل بھر آیا۔ اس نے اپنا کھانا اس عورت کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیجئے یہ کھانا آپ کھا لیجئے، آپ کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جلد ہی پورا کھانا چٹ کر دیا۔ شہزادے کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا جو کھانا 3 لوگ کے لیے ہو سکتا تھا، آخر کس طرح یہ بوڑھی عورت اکیلے ہی کھا گئی؟ ابھی وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک بہت تیز روشنی ہوئی اور اس کی آنکھیں اس روشنی کی تاب نہ لا کر بند ہو گئی۔
कुछ ही देर बाद जब इसने आंखें खोली तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके सामने अब कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान और निहायत हसीन और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से इसने अपने दिल पर काबू पाकर कहा, आप कौन है और यहाँ पर क्यों आई है? इस नौजवान और हसीन लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ पर आपका इम्तहान लेने आई हूँ। मुझे खुशी है कि आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए। दरअसल जिस बूढ़ी औरत को अभी आपने खाना खिलाया वह मेरा ही एक रूप था। शहजादे ने कहा, मैं अभी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, बराए कर्म तफसील से बताइए। आप तो बहुत ही भोले मालूम होते हैं जो अभी तक हमारी बात का मतलब ना समझ सके। यह कहते हुए उस लड़की ने अपनी बात कहनी शुरू की, मैं परियों की शहजादी तलतनाज हूँ। मैंने एक इम्तहान लेने की खातिर यह ड्रामा किया था। आपके आने से पहले 2 शहजादे इस इम्तहान में नाकाम हो गए और उन्होंने मुझे बूढ़ी औरत समझकर धुतकार दिया और अपने साथ खाना खिलाना तो दरकिनार मुझसे बात करना भी गवारा नहीं की। इस तरह वह इस इम्तहान में फेल हो गए। यह कहते हुए उसने महसूस किया कि शहजादे को यहाँ पर काफ़ी वक्त हो गया है और अभी इसने खाना भी नहीं खाया। इसी वजह से इसने शहजादे से कहा, मेरा ख्याल है कि आप मेरे घर पर तशरीफ़ ले चलें। आप सफ़र की वजह से थके हुए हैं, आपको शिद्दत से भूख भी लग रही होगी। यह बात शहजादी ने इस तरह से कही कि शहजादे को उसकी बात मान लेनी पड़ी और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। शहजादी ने ताली बजाई, फौरन ही 2 परिजाद हाजिर हुए। इसने शहजादे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनको हमारी सल्तनत में ले चलो। परिजादों ने हुक्म की तामील की। थोड़ी ही देर में वह परियों की देश कोहे काफ पहुँच गए। यहाँ की खूबसूरती और रौनक देखकर शहजादा हैरान रह गया। पूरा इलाका ही खुशनुमा और खूबसूरत फूलों से महक रहा था। मकान भी साफ और पुख्ता बने हुए थे। हर तरफ अजीब व गरीब और दिल को खुश करने वाला माहौल था। शहजादी इसको अपने महल ख़ास में ले गई और जो परिजात शहजादे को लेकर आए थे उसने शहजादे के आराम का इंतज़ाम कराया। चूँकि दिन भर सफ़र करने की वजह से वह काफ़ी थका हुआ था। जल्द ही शहजादे को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। शहजादी को ख्याल आया कि अभी तक शहजादे ने खाना भी नहीं खाया है और उसका खाना वह खुद ही खा जाने की वजह से शहजादा भूखा ही होगा। यह सोचते ही शहजादी ने फौरन परिजात को हुक्म दिया कि शहजादे के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए और ख़ुद शहजादे से इस तरह जंगल आने का मकसद पूछने लगी। शहजादे ने इसको अपने वालिद के बीमार होने और फिर इनका इलाज के लिए सुंदरबन से आकाश का फूल लाने वाली बात परी को बता दी। इतने में परिजात खाना ले आए। फौरन ही दस्तरखान लगाया गया और शहजादे ने खाना शुरू कर दिया। उसी दौरान इधर उधर की बातें होती रही। खाने से फारिग होने के बाद शहजादे ने कहा, इस वक्त आप मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे बहुत अहम और ज़रूरी काम से सुंदरबन जाना है। यह सुनकर शहजादी मुस्कुराई और फिर उसने कहा, क्यों जनाब, क्या आप सुंदरबन जा सकते हैं और फिर वहाँ से सही सलामत वापस आने की उम्मीद भी रखते हैं? यकीन जानिए वहाँ बहुत ख़तरा है, यहाँ तक कि वहाँ ज़िंदगी का भी ख़तरा रहता है। कम ही लोग ऐसे होंगे जो वहां जाकर वापस जिंदा आ सके। इसके बाद वह दोनों आराम करने के इरादे से अपनी अपनी ख्वाबगाह में चले गए। जब सुबह शहजादी तरतनाश होकर उठी तो इसको शहजादे की याद आई। उसने खादमाओं को शहजादे को जगाने के लिए भेज दिया। फिर वह ज़रूरियत से फारिग होकर अपने कमरे से बाहर आ गया। शहजादी उसको दूसरे कमरे में ले गई जहां इसके नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था। नाश्ते से फारिग होकर दोनों कुछ देर बातें करते रहे। इसी दौरान फिर शहजादे ने अपने वालिद के बीमार होने और बूढ़े हकीम के ज़रिए आकाश के फूल वाली बात दोहराई और उन्होंने हासिल करने की गर्ज से सुंदरबन जाने की बात कही। उसे सुनने के बाद शहजादी मुस्कुराई और फिर उसने कहा, शहजादे, मैं पहले ही कह चुकी हूँ वहाँ ख़तरा बहुत ज़्यादा है। क्या आप इन ख़तरे के होते हुए आकाश के फूल लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इसमें शक ही क्या है, जब इंसान किसी काम का पुख्ता इरादा कर ले तो वह मेरे ख़्याल में इसमें कामयाबी हासिल कर ही लेता है। यह बात शहजादे ने पुख्ते अज़्म व हौसले के साथ कही। इसे सुनकर फिर शहजादी ने कहना शुरू किया, जनाब, आपकी हिम्मत अपनी जगह है, मगर मुझे यकीन है कि आप यह फूल लाने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए मैं अपने ख़ास खादिम को इस काम की गर्ज से भेज दिया है। वह जल्द ही आपके लिए यह चीज़ लेकर वापस आ जाएंगे
तब तक आप यहीं हमारे पास रहिए और आराम कीजिए। शहजादी की बात से शहजादे को काफ़ी राहत मिली और वह जब तक आकाश के फूल नहीं आ जाते तब तक के लिए वहीं रहने पर राज़ी हो गया। एक दिन उसने शहजादी से मालूम किया कि आखिर आपको यह सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी और इसमें आपका क्या मकसद था। तो शहजादी बोली, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और बहुत ही लाड प्यार और नाज व नज़्म से पली हुई हूँ। शुरू से ही मेरे वालिदैन ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। इसी वजह से अब शादी के इंतखाब के लिए भी उन्होंने यह फ़ैसला मेरी ही मर्ज़ी पर छोड़ दिया, मगर मैंने अपना जीवन साथी चुनने के लिए ज़ाहिरी माल और दौलत और हुस्न जमाल छोड़कर इखलास की नेकी को तरजीह दी और यह तय किया कि जो भी मेरे इस इम्तहान में कामयाब हो जाएगा उसी को मैं अपने लिए चुन लूँगी। यह कहते कहते उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और इसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद शहजादी ने फिर कहना शुरू किया, अब्बा मोहतरम के इस फैसले की वजह से ही मैंने यह तय किया था कि बूढ़ी औरत का भेष बदलकर इस तरह नौजवानों का इम्तहान लूँगी, क्योंकि मेरे मंसूबे के मुताबिक मेरे नज़दीक शक्ल सूरत से ज़्यादा इखलाक और सीरत ही ज़्यादा अहमियत है। बहुत से नौजवान मेरे इस इम्तहान में आए मगर वह कामयाब न हो सके। इनमें से आपके दोनों भाई भी थे जो मगरूर होने के साथ साथ हासिद और सख्त दिल भी थे, लेकिन आप मेरे इस इम्तहान में पूरी तरह से कामयाब हुए और आज मेरा यह मिशन पूरा हो गया। शहजादी ने अपनी बात पूरी की और फिर वहाँ से उठकर चली गई। दिन काफ़ी चढ़ चुका था। एक गुलाम हाजिर हुआ और आदाब बजाकर निहायत अदब व एहतराम से बोला, शहजादी साहिबा, हुजूर वाला ने याद फरमाया है। फ़ौरन ही शहजादी वालिद मोहतरम के हुजूर पहुंच गई और आदाब बजाकर वहीं अपने वालिद साहब के नज़दीक ही बैठ गई। कुछ देर बाद शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, आपने हमें याद फरमाया था, फरमाइए क्या हुक्म है। बादशाह बोला, हमने सुना है तुम्हारे साथ कोई आदमजाद आए हैं, भाई हमको भी तो उनसे मिलवाओ। क्यों नहीं अब्बा हुजूर, हम अभी इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। शहजादी ने खादिम को हुक्म दिया कि वह जाकर शहजादे को अपने साथ ले आए और ख़ुद बादशाह को वही सारा वाक़या जो जंगल में उसके साथ गुजरा था कह सुनाया। उसी दौरान दोनों खादिम शहजादे को अपने साथ लेकर बादशाह के हुजूर वापस आ गए। शहजादे से मुलाकात के बाद बादशाह उसके आदाब और तहजीब से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने शहजादी से कहा, आज दोपहर का खाना तुम दोनों हमारे साथ ही खाना। यह कहकर बादशाह सलामत वहाँ से उठकर आराम करने चले गए। फिर यह दोनों भी वहाँ से बाहर निकलकर बाग में चहलकदमी करने लगे। दिन गुजरते देर नहीं लगती। शहजादे को वहाँ रहते हुए एक हफ्ता गुजर गया। उसी दौरान शहजादी के भेजे हुए सिपाही भी सुंदरबन से आकाश का फूल लेकर वापस आ गए। आकाश के फूल आते ही शहजादे से रहा नहीं गया और इसने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, अब हमको अपने घर जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि घर पर अब्बा हुजूर बीमार हैं और इनकी इलाज की गर्ज से इस घास की सख्त ज़रूरत है। शहजादे की ज़रूरत और मजबूरी को देखते हुए शहजादी ने फ़ौरन ही इसके सफ़र का इंतज़ाम कर दिया। शहजादा बादशाह सलामत से इजाज़त लेने के बाद फ़ौरन ही अपने मुल्क की तरफ चल दिया। चलते वक्त शहजादी ने अपना ख़ास खादिम उसके साथ कर दिए और कहा, आप जब भी हमारे यहाँ आना चाहें यह दुआ पढ़ें। इसने शहजादे को एक मखसूस दुआ बता दी तो आप पर हमारे मुल्क के रास्ते खुल जाएंगे और रास्ते में आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी और वहीं सरहद पर हमारे खादिम भी आपको मिल जाएंगे। गर्ज के शहजादी ने उसको कुछ और ज़रूरी बातें बताकर रुखसत कर दिया। जब वह अपने मुल्क की सरहद पर पहुंचा तो यह देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसका घोड़ा वहीं खड़ा हुआ है और उस पर बहुत से कीमती तोहफे लदे हुए हैं। वह घोड़े पर बैठकर फ़ौरन ही अपने मुल्क के लिए चल पड़ा। सब लोग बहुत खुश हुए। उसकी खैरियत से वापस आने की वजह से हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आने लगी। हर जगह मुसर्रतों की लहर दौड़ गई और सब लोगों को यह मालूम हुआ कि शहजादा शेर खान आकाश के फूल लाने में कामयाब हो गया है। तो सबकी खुशी में और भी इजाफा हो गया। हकीम साहब ने बिना किसी ताख़ीर के इस घास से दवा बनाई और बादशाह सलामत का इलाज शुरू कर दिया। खुदा के फजल और आकाश के फूल के इस्तेमाल से बादशाह सलामत जल्द ही ठीक होने शुरू हो गए और चंद ही दिनों में उसकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई। हर तरफ खुशी के शादियाने बजाए जाने लगे। फ़कीरों को माला माल कर दिया गया, आवाम को तोहफे से नवाजा गया, महलों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। गर्ज की हर तरफ खुशी ही खुशी नज़र आने लगी। उसी दौरान शहजादे के दोनों भाई
भाई भी वापस आ गए, लेकिन वह आकाश के फूल लाने में कामयाब न हो सके और बहुत दिनों तक रास्तों में भटकते रहने के बाद नाकाम ही वापस लौट आए। अपने अब्बा हुजूर की सेहत याबी से उन्हें खुशी तो बहुत हुई, मगर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि शहजादा शेर खान आकाश के फूल लाने में कामयाब हो गया है और बादशाह की सेहत याबी इसी का नतीजा है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उनके अंदर हसद की आग भड़क उठी। मगर उस वक्त वह कर भी क्या सकते थे, दिल महूस कर रह गए और खामोश तमाशाई बने रहे। बादशाह को ठीक हुए एक हफ्ता गुजर गया। हकीम साहब और बाहर के दिगर मेहमान भी रुखसत हो गए, तो एक दिन बादशाह सलामत ने शहजादा शेर खान से सुंदरबन पहुंचने और फिर वहां से आकाश के फूल लाने की बात मालूम की, जो खुद बादशाह की नज़र में भी किसी आदमजात के लिए किसी तरह भी मुमकिन न था। तो बादशाह के हुक्म पर शेर खान शहजादे ने गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया। उस दौरान दोनों बड़े शहजादे भी मौजूद थे। उन्होंने जब जंगल की बूढ़ी औरत की बात सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा अगर वह दोनों भी उसके साथ आजिज़ी, हमदर्दी और नेकी का सलूक करते तो आज कामयाबी उनके कदम चूमती, मगर अब अफसोस करने से क्या हो सकता था। वक्त गुजर गया, मौका भी हाथ से निकल गया। आज उन्हें मालूम हो चुका था कि नेकी, भलाई और दूसरों की खिदमत में ही इंसान की राहत और सरबुलंदी है, और वही लोग कामयाब हो पाते हैं जो नेक दिल, शरीफ और खिदमत करने वाले हुआ करते हैं। दूसरों को हकीर, छोटा या जलील समझने वाले तो हमेशा ही नुकसान में रहा करते हैं। बिल आखिर जब बादशाह को परियों की शहजादी तलतनाज के बारे में मालूम हुआ तो उसने अंदाजा लगा लिया कि मेरी जिंदगी वापस लाने में सबसे ज्यादा हिस्सा उसी का है। इसलिए बादशाह सलामत ने शहजादे से कहा, बेटा किस दिन मुनासिब हो सके तो हमारी मुलाकात भी शहजादी तलतनाज से करा दो। शहजादा तो खुद यही चाहता था। बादशाह सलामत ने उसके दिल की बात कह दी थी। वह खुद भी शहजादी से मिलने को बेकरार था, इसलिए उसने फौरन ही बादशाह सलामत के हुक्म पर लब्बैक कहा और घोड़े लेकर परियों के देश की तरफ निकल पड़ा। दूसरे ही दिन वह परियों की शहजादी तलतनाज को साथ लेकर अपने मुल्क वापस आ गया। जब बादशाह सलामत ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वाकई वह बहुत ही खूबसूरत, निहायत शरीफ और तहजीबदार थी। उसकी खूबसूरती के साथ ही उसके अखलाक और आदाब ने भी बादशाह के दिल पर बड़ा गहरा असर किया। 2-3 मुलाकातों में ही वह उसका गर्विदा हो गया। कुछ दिन बाद बादशाह सलामत की मुलाकात शहजादी तलतनाज के वालिद से भी हो गई। दोनों बादशाह भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और गहरे दोस्त हो गए। चंद माह में ही, चंद महीनों में ही बादशाह सलामत ने शहजादी तलत के वालिद के सामने शहजादी तलतनाज के लिए शेर खान का रिश्ता पेश किया। वह तो खुद भी यही चाहते थे और शेर खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी वजह से उसने फ़ौरन ही यह रिश्ता मंजूर कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और फिर वह दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।